morning, students. Today we'll discuss about how to create a database in Microsoft Access. There are the different method for creating the database. One is the template option. Second is the blank database. Firstly, we'll discuss about how to create a database in the form of the template option. So, firstly, we start the how to open the MSSS. Click on the start button. Firstly, we can select the start button and you can type MSSS. Yeah, assess. There are the different options are available. Like these are the different options. First option is a blank database. If you want to create a new database according to your requirement, you can select the blank database. Otherwise, there are the different templates that are the predefined. There is no need to add the new field, new tables. These are the different predefined database in which already fields are added. Let's start. हम start करते हैं. There are the different type of the templates. Like firstly हम select करते हैं student name का database जो already एक template की form में already पहले से बना हुआ है. Firstly you can select the give the name of the database which you want to set, like school, and you can also set the position or location where you want to save. You can select the location where you want to save. Like when you set the desktop, it displays the location of the desktop where your data school name का database है वो save होगा. After you can set the location, you can click on the create option. When you click on the create option, your process is start for preparing the templates which is already created. तो templates को हम क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड, जो ऑलरेडी रेडीमेड बने बनाए होते हैं. सेकंड हम बात करेंगे, जो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसमें होगा ब्लैंक डेटाबेस. वो देखना हम उसमें खुद फील्ड क्रिएट करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो रेडीमेड. देयर आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट which is already created. These are the different tables, these are the different queries, these are the different forms, these are the different reports that are related to the student. Firstly you can select particular table. Like हम select करते हैं student नाम के टेबल को हमने बेटा select किया. When you select the student table, there are the different options, different fields which are stored into the student table that is already created. So there are the different fields. If you want to remove a particular field, you can select that field and right click on that field. There are the different option. अगर आप कोई भी फील्ड को ऐड, डिलीट, रीनेम कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ठीक है, हम साथ साथ ही इसका चैप्टर वाइज हम देखते हैं. ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है. ठीक है, टेम्पलेट की फॉर्म में क्रिएटेड डाटाबेस यूजिंग टेम्पलेट. और यहाँ पे ये देखो बेटा, टू क्रिएट ए डाटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, जो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं. देयर आर द डिफरेंट टेम्पलेट्स. यहाँ पे ये देख पा रहे हो डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हमने अभी किए हैं. एंड देयर आर, यहाँ पे भी उन्होंने स्टूडेंट्स नाम का टेम्पलेट सेलेक्ट किया है. यहाँ पे उन्होंने डाटाबेस का जो भी नाम दिया उसकी लोकेशन सेट की और वो डाटाबेस उनके सामने वो चीज बनी आ गई. और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अभी यहाँ पे ये देखो, यू कैन ऐड मोर फील्ड. अगर हम यहाँ पे एक और भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? यू कैन राइट क्लिक ऑन दैट field where you want to add. There are the different option. You can select the field, add field option. यहाँ पे insert field की ऑप्शन है. यहाँ पे क्लिक किया, जैसे बेटा आपने क्लिक किया यहाँ पे नया फील्ड ऐड हो गया. और यहाँ पे जो भी आप चेंज करना चाहते हो, देर आर डिफरेंट मेथड्स. लाइक आप एक तो डबल क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे फील्ड का नाम दे दो. लाइक मैंने दे दिया मोबाइल. यहाँ पे मोबाइल नाम का
जो है फील्ड ऐड हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद है उन्होंने बताया है कि अगर आप इसका व्यू देखना चाहते हो, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द व्यू बटन ऑन द व्यू ग्रुप। यहाँ पे हमें गए होम टैब व्यू, जो भी व्यू आप देखना चाहते हो, देर आर द टू डिफरेंट व्यू ऑफ द टेबल। वन इज द डाटा शीट व्यू, सेकंड इज डिजाइन, दैट इज अ डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू क्या कौन सा होता है, देर आर द टू व्यू ऑफ द टेबल, वन इज द डाटा शीट व्यू, सेकंड इज डिजाइन। डिजाइन व्यू और डाटा शीट व्यू में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक सिंगल पॉइंट से क्लियर करता हूँ। इन ए डाटा शीट व्यू यू कैन ऐड द फील्ड एंड यू कैन आल्सो ऐड द रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो और फील्ड भी ऐड कर सकते हो, लाइक दैट इज अ डाटा शीट व्यू। लाइक यहाँ पे हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से फर्दर आगे कॉलम में ऐड कर सकते हो, दैट इज ए डाटा शीट व्यू। सेकंड इज अ डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में क्या आएगा, जस्ट ओनली क्या दिखाएगा, फील्ड के नेम, और आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। लाइक मैं अभी यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा, ये देखो, ये हमारे पास फील्ड आ रहे हैं और ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज आ रही हैं। कुछ भी आप लाइक फील्ड यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, फील्ड की आपने डाटा टाइप या कुछ भी आपने चेंज करना है। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास रीड ओनली फाइल है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तब तो तभी ये देख देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे कोई भी, हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा, दैट दैट इज अ रीड ओनली बिकॉज दैट इज अ टेम्पलेट्स। इसकी डाटा टाइप यहाँ से नहीं चेंज होगी, इसकी डाटा टाइप अगर आपने चेंज करनी है तो आपने डिजाइन व्यू में गए, यहाँ पे हमारे पास होगा फील्ड, और यहाँ से आप उसकी डाटा टाइप चेंज कर दो। लाइक मैं अभी ने यहाँ पे सेकंड कॉलम पे आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कर दिया लॉन्ग टेक्स्ट, यस कर दिया। अब उसकी डाटा टाइप भी आप देख सकते हो चेंज हो गई। तो दीज आर द टू टू व्यूज। हमारे पास कौन कौन से व्यूज है, डिजाइन व्यू एंड डाटा शीट। ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कौन सा है हमारा, क्रिएटिंग ए ब्लैंक डाटाबेस। अब देखो इसके बाद है ब्लैंक डाटाबेस, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम करते हैं, अभी आपको करके दिखाते हैं। यहाँ भी हम इसको एक बार क्लोज कर रहे हैं, तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं एसएस। जैसे ही हमने एसएस स्टार्ट किया, यहाँ पे आएगा ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने सेम एज इट इज वही है जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था कि हमारे पास टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया था, वहां पे हमने क्या करना है, ओनली ब्लैक डाटाबेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेम एज इट इज लोकेशन आपने डेस्कटॉप सेट कर दी, हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमारे पास, अब देखो आप देख सकते हो जहाँ पे हमारे पास ये नेविगेशन पैनल आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पैनल्स ये वाला आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन पैनल्स, और यहाँ पे आप देख देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको शो नहीं हो रहा, पहले बना हुआ है, बिकॉज दैट इज अ न्यू टेबल डेटाबेस। ये जो आपने डेटाबेस बनाया है, ये टॉप पे देखो टाइटल बार में, ये डेटाबेस आपका खुद बना बनाया डेटाबेस है, और ये यहाँ पे आप ब्लैंक डेटाबेस ले रहे हो। ब्लैंक डेटाबेस का मतलब है कि आप खुद नया डेटाबेस बनाओगे, इसके अंदर जो टेबल क्रिएट करोगे वो भी आपके खुद के होंगे। ठीक है, लाइक अभी हम यहाँ पे कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन दैट, फर्स्टली यू कैन सेलेक्ट द डाटा टाइप, यहाँ पे आपने फील्ड का नेम दे दिया नेम, यहाँ पे आपने ओके किया। और यहाँ पे आप, यहाँ पे भी ये देखो ऑटो नंबर आ रहा है, ऑटो नंबर का और नंबर में क्या फर्क है वो भी हम आपको बताते हैं आगे। ठीक है, अब ये जीरो क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं, ये जीरो क्यों आ रहा है, और यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच, क्यों क्यों ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे डाटा टाइप आपकी, हाँ नेम है ना, अब ये देखो इसकी डाटा टाइप क्या रखी हुई है, नंबर। यहाँ पे हम इसकी डाटा टाइप पहले चेंज करते हैं। ठीक है, अभी देखना,
कुछ इसने कुछ भी नहीं बेटा ऐड होने देना। लाइक देखो ये वो अपने आप नंबर ले रहा है ऑटो, तो यहाँ पे हम इसकी डाटा टाइप नंबर करते हैं। जैसे ही हम नंबर करेंगे हम खुद इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये देखो वैल्यू चेंज होगी। अब आपके माइंड में ये होगा ये डिफॉल्ट क्यों ले रहा है, जीरो क्यों ले रहा है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे सेट, इसके लिए ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। यू कैन आल्सो चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू इन द व्यू ऑप्शन एंड डिजाइन व्यू। You can select the design view option. You can give the name of the table like student, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। ठीक है, यहाँ से मैंने डिफॉल्ट वैल्यू जीरो इरेज कर दिया। सेकंड, अगर हाँ नेम में बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आ रहा, वो आप सेट ना करो, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो सेम मांगेगा इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, अब हम नया फील्ड अगर ऐड करना चाहते हो सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस। लाइक यहाँ पे हमने शॉर्ट डाटा टाइप ली, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जेबीडी दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपका डेटाबेस होगा वो आपको टॉप पे शो होगा, वो सबसे पहले आपने क्रिएट करना है। आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट ए टेबल। जितने मर्जी आप टेबल इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज ए, देर आर द टू व्यूज, डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक बार आपकी बुक को भी गो थ्रू कर लेते हैं। क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस पे सेम एज इट इज हमने डाटाबेस ऐड किया, और उसके बाद है व्यू ऑफ टेबल। देयर आर द टू व्यूज, वन इज द डाटा शीट व्यू एंड सेकंड इज डिजाइन। ठीक है, डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू में क्या है वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डाटाबेस ओपन इन डाटा शीट व्यू। जैसे ही हमने डाटाबेस ओपन किया था तो उसका बाय डिफॉल्ट जो व्यू आ रहा था वो कौन सा था, डाटा शीट व्यू। एक चीज दिमाग में रख लेना बेटा, डाटा शीट व्यू में क्या हो सकता है, इन डाटा शीट व्यू देर आर द नंबर ऑफ कॉलम्स वी कैन आल्सो ऐड एंड यू कैन आल्सो ऐड द डेटा। आप डेटा भी ऐड कर सकते हो और कॉलम भी ऐड कर सकते हो, बट इन द डिजाइन व्यू you can also you can only design the table, not give a give the record to the column। आप रिकॉर्ड नहीं एंटर कर सकते, आप ओनली क्या है फील्ड ऐड कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज आगे आप हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है, जो कुछ भी आपने फील्ड ऐड करना है वो डिजाइन व्यू में सिर्फ ऐड कर सकते हो, ओनली डिजाइन, नेम से ही क्लियर है। तो डाटा शीट व्यू में यू कैन आल्सो ऐड द फील्ड, यू कैन आल्सो सेट द प्रॉपर्टीज, यू कैन आल्सो चेंज द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स मीन टू से which type of data you want to add into the field, ये सब कुछ सेट कर सकते हो। बट यू एंड यू कैन आल्सो ऐड द रिकॉर्ड, बट इन द डिजाइन व्यू ओनली यू कैन डिजाइन द टेबल, सिर्फ टेबल को डिजाइन कर सकते हो। एंड यहाँ दिस व्यू इज यूज्ड टू एंटर द डाटा इन टेबल। इन दिस व्यू द टेबल इज डिस्प्लेड एज अ ग्रिड। इसमें जो टेबल होगा वो ग्रिड की फॉर्म में होगा। ग्रिड मीन टू से रो एंड कॉलम, ईच रो रिगार्डेड एज ए रिकॉर्ड। जो रो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एज ए रिकॉर्ड। जो कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक रहेगा।